morning, students. Today I will discuss with you your fourth chapter from the fundamental part of human geography, that is human development. What is human development? Human development can be defined as the process of enlarging opportunities and choices. That is of the people. Development means there should be a lot of opportunities. But there is a term development and growth. There is a term what is development and what is growth. There is a minute difference between growth and development. Growth is a quantitative term. That means growth may be positive, growth may be negative. But development is always a qualitative term. For example, suppose West Bengal का 2020-24 में what is the production of paddy? अगर क्वेश्चन हम बोले इस साल में वेस्ट बंगाल में 2 मिलियन टन राइस का प्रोडक्शन हुआ। अगले साल में कितना हुआ? 3 मिलियन टन। मतलब 1 मिलियन टन इसमें ग्रोथ हुआ। अगर अगले साल 1 मिलियन टन हो जाए 2 मिलियन टन से, मतलब 1 मिलियन टन प्रोडक्शन थोड़ा घट गया है। मतलब ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव टर्म, इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। और materialistic, you can say that the materialistic position, that is growth. But development and progress, it is a qualitative term. Development and growth always will be the qualitative. So when development occurs, when there is an increment or adding of the existing conditions, where growth is always positive. So development is a qualitative term, and then come the word success. So there is a small difference between growth, development or progress and success. So what is growth? You can say that ग्रोथ इज अ मेटेरियलिस्टिक पोजीशन। तुम्हारे पास घर आया, संपत्ति आया, प्रोडक्शन बढ़ा, ये तुम्हारा ग्रोथ है। लेकिन डेवलपमेंट कब आएगा? ये जो प्रोडक्शन प्रोग्रेस कब आएगा? तुम्हारे पास जो मेटेरियलिस्टिक पोजीशन आया, ये तुमने एक्वायर कैसे किया? ग्रोथ के साथ अगर ऑनेस्टी इसमें प्लस हो जाए तो वो हो जाएगा डेवलपमेंट। उसके बाद सक्सेस क्या है? तुम्हारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टी आया, लेकिन यू हैव सम ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी सोसाइटी। You have to spend your wealth for the welfare of the society. अगर तुम वो कर सकोगे तब आ जाएगा सक्सेस। So there is a minute difference between growth, development and the progress and the success. Always याद रखना that development is a qualitative term, and human development, you know that human is the ultimate resource of a country, because the development of any country or any nation, it depends on its human resource. मतलब people जो होते हैं population, they should be the skilled population. Who are the human resource? The skilled people, the educated people who have the knowledge, जो देश के जीडीपी में प्रोडक्शन में बढ़ाने के लिए अपने आप को योगदान कर सकते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव टर्म, एंड ए सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट इट इंक्लूड्स लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी होना चाहिए, उसके साथ क्वालिटेटिव एजुकेशन, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पॉलिटिकल फ्रीडम। यू शुड हैव द पॉलिटिकल फ्रीडम। Whatever the party is in the power, you can choose any party. You should have the political freedom, and you must have the voting power. So you must enjoy political freedom, economic freedom, and then equal access to the resources, and the guaranteed human rights and dignity. So all these are the aspects of human development. Previously, the term human development was measured only by the economic development of the country. मतलब तुम्हारे पास पैसा हो, मतलब economic अगर develop high level of economic है, that means you can enjoy the human development. But development, this term is used in much more broader sense. मतलब economic development एक aspect है। economic जो approach है, it is one of the oldest approaches to human development, but the term development is used in much more broader sense. तो इनके बारे में प्रीवियसली बोला जाता था डेवलपमेंट मतलब तुम्हारे पास पैसा है तो डेवलपमेंट है। लेकिन दिस ह्यूमन डेवलपमेंट टर्म वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय एमिनेंट साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक in 1990, and he believed that human development always enlarging the opportunities and the choices which ultimately improve our living. Okay, and these choices keep on changing.
So what is the basic motto? What is the main objective of the human development? In a simple term, the basic motto of human development is to create a condition where we can enjoy, the people can enjoy a decent life, a meaningful life. They can participate in the society, and ultimately they can fulfill their dreams. There must have enough means that they can fulfill their dreams. So that is human development. And Amartya Sen, you know the name Amartya Sen, he is from India, and even he is from West Bengal. He is an eminent economist from India, and he is the Nobel laureate, you know that. And according to Amartya Sen, he has used a term that is freedom. According to Amartya Sen, freedom is the main aspect of human development, and this freedom, इस freedom को हम कैसे इसको achieve करें? This freedom can be achieved through the political and the social institutions and the processes. So in conclusion, we can say that what are the main aspects of human development? मतलब human development होने के लिए क्या क्या चाहिए? एक देखो long and healthy life, मतलब you should, the country should have the medical facilities, a high level of medical development, जहाँ पर लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी होना चाहिए. अगर तुम यूएस को देखो, यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? 77 ईयर्स. लेकिन तुम अफ्रीकन कंट्री में चले जाओ तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी नियर अबाउट 54 ईयर्स. इसे हम बोल सकते हैं the level of human development is high in USA compared to the African countries and other countries, and on an average the life expectancy is 65 years in the earth. Then you should have the qualitative education, मतलब you can acquire the knowledge, you can develop your talents, and ultimately you can achieve your goals. ऐसे condition होना चाहिए. And economic freedom तो होना चाहिए, because if you have the economic power, if you have the high level of economic development, you have more purchasing power. If you have more purchasing power, that means you can enjoy the freedom. So high level of economic development, which means the high level of human development. There must be the equal access to the resources. जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है वो इसमें इक्वालिटी होना चाहिए. रिसोर्स यूटिलाइजेशन में भी इक्वालिटी होना चाहिए. एंड हैव इनफ मीन्स टू लीव अ डिसेंट लाइफ, and you must participate in the society, and you will ultimately achieve your goals. And so these all are the basic criteria, and you can say that the main aspects of human development. किसी कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा है या कम है, ये डिपेंड करता है कंट्री का एक्सपेंडिचर कितना वेलफेयर सेक्शन में. जैसे अगर कंट्री का जो बजट होता है, एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस में खर्चा किया जाए, मतलब वहाँ पर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कम है. अगर वेलफेयर सेक्शन में क्या क्या आता है? हमारा हेल्थ आता है, हाउसिंग आता है, एजुकेशन आता है. तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनहांसिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय मैक्सिमाइजिंग देयर एक्सपेंडिचर ऑन द वेलफेयर सेक्शन. ओके. और नेक्स्ट पॉइंट जो है इस चैप्टर का, पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. पिलर का मतलब क्या? स्तंभ. ह्यूमन डेवलपमेंट का पिलर क्या है? देखो, there are 4 pillars of human development. Number 1, equity, sustainability, productivity, and empowerment. What do you mean by equity? Equity comes from the word equality. मतलब there must be the equal opportunities, the availability of the equal opportunities to all. I mean, irrespective of the race, religion, gender, socio-economic status, and also the caste. कोई भी रीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, मेल हो, फीमेल हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए. तो ये हो गया हमारा इक्वलिटी. देन सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एक टर्म आया है. तो जितने सारे अपॉर्चुनिटीज है सोसाइटी में, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? देयर मस्ट बी द लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. और सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या है? देयर मस्ट बी द कंटिन्यूटी ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज. मतलब तुम अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज कर रहे हो, ऐसे इसको माइंड में सोच के रखो. यू शुड थिंक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज एंड द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. मतलब ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, ये जनरेशन बाय जनरेशन इसको ये इसका अवेलेबिलिटी होना चाहिए. that means the continuity of the availability of the opportunities, that is the sustainability. Then productivity. यहाँ पर productivity का मतलब है productivity of labor, productivity of the human labor. And you all know that human being is the ultimate resource of the country. इसके लिए कौन responsible है? The government responsible. It's the duty of the government to spend, to provide nutritious food,
और गुड क्वालिटी ऑफ फूड, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज एंड एजुकेशन टू देयर सिटीजन। इसमें क्या होगा ना, अल्टीमेटली दे प्रोवाइड्स द बेटर वर्ल्ड डिसीज। ओके, देन द फोर्थ पॉइंट है, ये है एम्पावरमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पावरमेंट? डेवलपमेंट का मतलब क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। बट व्हाट इज एम्पावरमेंट? दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज ऐसे रहेगा, सपोज ऐसा है, तुमको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर एचएस और स्टडीज यू हैव सम ड्रीम इन योर माइंड अबाउट योर करियर बिल्डिंग। तुम ऐसे करियर को चूज करोगे जो तुम्हारा मन में है। मतलब कोई वाइल्ड फोटोग्राफर बनना चाहता है लेकिन कोई इंजीनियर बन गया, मतलब अपना ड्रीम के साथ तुम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मतलब अपॉर्चुनिटीज है, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दैट इज डेवलपमेंट। लेकिन एम्पावरमेंट है जब when you can choose according to your choices, or good governance and people oriented policies are required to empower the people। जैसे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारे ऐसे पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरस्वती समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मेनी मोर। दीज आर फॉर विमेन एम्पावरमेंट। जन धन योजना, इसके बाद अटल पेंशन योजना, और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका जो मेन मोटो था, प्रोवाइडिंग हाउसिंग एवरीबॉडी बाय 2022। तो these all are the government people oriented policies of the government and which is required to empower the people. So all these are the four pillars of human development: equity, sustainability, productivity and empowerment। अब देखो वर्ल्ड मैप को अगर देखो, कौन-कौन सा तुम्हारा कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर वर्ल्ड में देखा जाए, ये जितना सब स्कैंडिनेवियन कंट्री है, तुम्हारा नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ पर फिनलैंड, यहाँ पर जो लाटविया, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, यहाँ पर है, ठीक है, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर है स्विट्जरलैंड, यहाँ पर तुम्हारा नॉर्वे है या लाटविया है, कनाडा है। यहाँ पर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज वेरी हाई। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो लेवल है उसको HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से मेजर किया जाता है। इट इज अ मेजरमेंट टू रैंक द पोजीशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, टू रैंक द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। जो कौन सा कंट्री में ज़्यादा है? कनाडा में ज़्यादा है, USA में है, स्कैंडिनेवियन कंट्री में ज़्यादा है। लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जापान में भी अच्छा है। लेकिन अगर तुम अफ्रीकन कंट्री को देखा जाए तो देखो यहाँ का मिडिल जितना सा, जैसे कि साउथ सुडान, चाद, ये है नाइजीरिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यहाँ पर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज वेरी लो। लोएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज एग्जिस्टिंग इन दोज अफ्रीकन कंट्रीज। मतलब यहाँ पर इसके लिए बहुत सारा, मतलब ये जितना फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो HDI इंडेक्स इसका जो रैंक है जनरली 0 to 1 है। If human development ranks near to or more than 0.8, that is high level of human development, more than less than 0.5 हो गया उसका रैंक, तो लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। अगर तुम इंडिया में आओ, इंडिया में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स है, यहाँ पर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज लो और वेरी हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज एग्जिस्टिंग इन गोवा, यहाँ पर चंडीगढ़ एंड केरला। यहाँ पर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज वेरी हाई। सो ऑल these are the definition of human development and general concept of human development and the pillars of human development। नेक्स्ट जो पॉइंट है अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अप्रोच क्या क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट के? देखो देयर आर 4 अप्रोचेस। वन इज इकोनॉमिक अप्रोच, then basic needs approach, capability approach and welfare approach। মনে রাখবে there are 4 approaches of human development। The first one is economic approach, that is it is one of the oldest approaches to human development. The concept is like that: if you have more money, that means you can enjoy the more economic power, that means higher level of economic development, which that means higher level of human development। then welfare approach मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट कब ज़्यादा होगा? अगर वेलफेयर सेक्शन में डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। मतलब वेलफेयर सेक्शन में क्या क्या आता है? और एजुकेशन, मेडिकल, हेल्थ एंड हाउसिंग, ये तुम्हारा सेक्शन में डेवलपमेंट होना चाहिए। आफ्टर दैट बेसिक नीड्स अप्रोच। दिस बेसिक नीड्स अप्रोच, ये जो टर्म है इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे मैंने 6 बेसिक नीड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय दी। नंबर 1 हेल्थ मतलब मेडिकल सेक्टर, उसके बाद तुम्हारा एडुकेशन, हाउसिंग मतलब बेसिक नीड्स, उसके बाद फूड, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। सो दिस 7 basic needs have been identified by ILO and they ignore the other aspects. They say according to them human development मतलब ये जो 6 basic needs है ये fulfill होना चाहिए सिटीजन का, so that means the country have the human development. नेक्स्ट जो है कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशनल अमोर्टोशन। उन्होंने क्या बताया, मतलब कंट्री शुड इट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कंट्री टू इंक्रीज और एनहांसिंग द कैपेबिलिटी ऑफ द पीपल इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड द इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्स। तीनों सेक्टर को उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का एस्पेक्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एस्पेक्ट बताया, तीनों एस्पेक्ट बताया। एक है तुम्हारा हेल्थ में डेवलपमेंट होना चाहिए, कैपेबिलिटी ह्यूमन बीइंग का बढ़ना चाहिए हेल्थ सेक्टर में, एक एजुकेशन में और एक इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्स और माने पीपल मस्ट enjoy the freedom in these 3 sectors according to Amartya, that is the capability approach. So these are the basic points of human development. तो definition of human development आज मैंने क्या क्या तुम लोगों के साथ डिस्कस किया, a very gist discussion, that is the definition of human development. What is the difference between growth, progress and success, then the pillars of human development, approaches of human development index and the main aspects of human development. ओके, सो जो स्टूडेंट मेरा क्लास अटेंड नहीं किया उन लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना के भेज रही हूँ। थैंक यू।